This is Vishaka Dagar coming up with the next session of Simplifying Editorial. And the session is brought to you by A-Cube IAS. So in the session, bringing you today's editorial. The first editorial is about new administrative changes in Lakshadweep. So this has been in news recently, and I'm going to bring a let us explain section also, dealing in detail what has happened in Lakshadweep and why people are protesting, what are the possible solution, etc. Now, for now, let's deal with what the editorial and the author has to bring in this. Now, I'm talking about this editorial. It was in this section, and this was regarding the storm and strike, what has happened in between the center and state right now, the entire strike, which was more like political article. That's why I didn't bring this. आप इसे अपने interest के लिए पढ़ सकते हैं, but for the exam perspective, it was not that important. That's why I didn't bring. And but this article was related to Lakshadweep, which was in news recently, so I brought this. Below this was article which was written by an Rajya Sabha MP, and this was also relating to BJP and CPI, what is currently happening, accusing BJP. That's why I also didn't bring this article to you, because this was also political article. So this one and this one I neglected, but this one was important article. So this we are analyzing in detail. Now the article talk about the 4 regulations that has come in Lakshadweep. पहला है आपका Lakshadweep Animal Preservation Regulation 2021, Preservation of Anti-Social Activities Regulation PASA, Lakshadweep Panchayat Regulation 2021 and Lakshadweep Development Authority Regulation 2021. Now मैं थोड़ा article didn't talk about, but I'll tell you what has happened in all of this, थोड़ा. In Lakshadweep regulation, the administration has banned the beef consumption को आपको ban कर दिया गया है. And second is in the prevention of anti-social activities, बहुत सारी activities को under the Gunda Act is also Gunda Act, बहुत सारी activities को रोक दिया गया है. Access to sea and many of this structure has been broken down, and even preventive detention law आ चुके हैं. Various preventive detention laws are being there कि these are the activities which are being banned. Now also the Lakshadweep there's the regulation on alcohol is being removed. To the Panchayat Regulation Act, any person who is having more than 2 children will be banned from contesting election. उसको पंचायत election contest नहीं करने दिया जाएगा. And Lakshadweep Development Authority Regulation Act, a widening power, excess of the power is given to the Land Development Authority, under which they can even remove a person forcefully if they want a particular piece of land for the development. ठीक है, तो ये पूरे के पूरे आपके लेजिस्लेशन थे. एक में आपका बीफ में बैन कर दिया गया है, दूसरे में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस ला चुके हैं, जो कि आज मैं कि डेली करंट अफेयर्स है. आई हैव इवन डेल्ट इन डिटेल अबाउट दिस. तीसरा, एनी पर्सन हु इज हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन, उसको भी cannot contest election. And in Land Development Authority, बहुत ही widening power Land Development Authorities को दे दी गई है. Now author in here was previous administrator of Lakshadweep. He says कि वो वहाँ पे काम कर चुका है. Even before this regulation has come, he has worked around before 1990. And he says कि this he informed about the Lakshadweep. He talks about कि how archipelago, the entire Lakshadweep archipelago is an exclusive economic zone. बहुत it's like a zone जहाँ पे 3 distinct ecosystem आपको मिलते हैं. लैंड है, लगून है, ओशन है. अब लैंड और ओशन तो आप समझ गए होंगे. लगून क्या होता है? अगर ये आपका बेसिकली यहाँ पे लैंड है और यहाँ पे आपका फिर कोई लैंड पीस आ जाता है, बीच में कोई वाटर बॉडी अगर बीच में फंस जाती है, यहाँ पे जो वाटर बॉडी बीच में फंस जाती है, तो इसको कहते हैं लगून. तो ऑन वन साइड देयर कैन बी लैंड, अदर साइड कोई वेजिटेशन भी हो सकती है, कोरल्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. बट जब इनके बीच में जब कोई वाटर बॉडी फंस जाती है तो उसको लगून कहते हैं. तो लक्षद्वीप में इस तरीके का इकोसिस्टम है कि बहुत ज़्यादा ना वहाँ आपके आइलैंड्स हैं, आइलैंड के आसपास आपकी कोरल रीफ्स भी हैं, बीच में पानी भी फंसा हुआ है. इस तरीके से आपका आर्किपेलागो इकोसिस्टम बहुत ही यूनिक है. देन इट टॉक अबाउट द कल्चर. इट सेज कि यहाँ पे आपको मलयाली स्पीकिंग लोग भी मिल जाएंगे और महल भी यहाँ पे बोली जाती है, जो कि बेसिकली द वे ही ऑफ मालदीव जैसी होती है. मतलब कुछ जो आपका जो कल्चर है वो आपके इंडिया के यहाँ से मिलता है, और ये आपका लक्षद्वीप है, यहाँ पे आपका मालदीव है. तो कुछ कल्चर आपका केरला से मिलता है, कुछ कल्चर आपका यहाँ से ऐसे मिलता है. तो मिक्स कल्चर वहाँ का मिल जाता है अगर लैंग्वेज में देखा जाए. बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज वहाँ की सोसाइटी मेट्रियार्कल है.
तो जब आप सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो दिस इज लाइक अ वेरी गुड एग्जांपल यू कैन कोट कि बहुत ही मिट्रियार्कल सोसाइटी है अंडर रिलीजन इस्लाम, जो कि साफी स्कूल ऑफ लॉ से बिलोंग करता है. सो दिस इज हाउ दे गिवन डिटेल. But then article contest कि no the like given reason, the government जो reason दे रही है कि regulation क्यों लेकर आई है, the government is saying कि इससे पहले यहाँ पे बहुत ही कम development हुआ है मालदीव का, sorry like लक्षद्वीप का, and now we are trying to develop Maldives on the lines of Maldives. जैसे मालदीव की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म ड्रिवन है, ऑन द सेम लाइन लक्षद्वीप में भी हम इंटरनेशनल टूरिज्म डेवलप करना चाहते हैं. बट देन आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि इवन वहाँ पे पहले से ही इंटरनेशनल टूरिज्म डेवलप करने की बात की जा रही है, बट इन प्रीवियस डिटेल्स दे हैव नेगेटेड द आइडिया ऑफ मालदीव, बिकॉज मालदीव की जो लाइक इंटरनेशनल टूरिज्म बेस्ड डेवलपमेंट है वो वहाँ की इकोलॉजी को डैमेज करता है और वो पीपल सेंट्रिक नहीं है. बट जो हमारा जो मॉडल था वो बहुत पीपल सेंट्रिक था और जो वहाँ की फ्रेजाइल इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था. इनफैक्ट इट टॉक्ड अबाउट इन प्रीवियसली कि यहाँ पे बहुत पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ गई थी. इवन जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993 जिसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाया था वो भी नहीं आया था, उससे पहले वहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ गई थी. वहाँ के जो लैंड राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किए जा चुके हैं और वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म is being used to generate wealth of the people for the investor and not to actually just GDP को boost करने के लिए नहीं होता था. वहाँ इंटरनेशनल टूरिज्म लोगों की वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए होता था. So this was like administrator was trying to talk about कि जो आप the entire idea you are saying कि you know we are trying to bring development in Lakshadweep, it saying no this is not like the development was part of the Lakshadweep even in previous model. It talked about कि development तो बहुत ही like environment centric था कि वहाँ पे rain like in Lakshadweep every house has almost rain water harvesting facilities जो कि गवर्नमेंट बिल्डिंग में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी. Lakshadweep has to say rain water harvesting, not every house but it has rain water harvesting facilities. यहाँ पे 10 सोलर पावर कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ द सोलर एनर्जी. इनफैक्ट नेशनली अभी हमारा 10% ऑफ सोलर एनर्जी नहीं है, इट इज लेस देन 5 to 4%. एंड बट लक्षद्वीप में लाइक इफ आई एम राइट बट लक्षद्वीप में 10% है विच इज़ ह्यूज. यहाँ पे टोटल लिटरेसी इन लोगों ने अटेन कर रखी है. इंडिया में 76% है. यहाँ पे जो लक्षद्वीप में दो पावर्टी लाइन के थोड़े से ऊपर है, बट लक्षद्वीप हैज़ नो पुअर पीपल. मतलब पावर्टी नहीं है वहाँ पे, इनइक्वालिटी नहीं देखी जाती है. तो वहाँ पे पावर्टी नहीं है, इनइक्वालिटी नहीं है, टोटल लिटरेसी है. वहाँ पे 10% एनर्जी सोलर पावर से आ रही है. वहाँ पे आपकी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज चल रही हैं. ऑन दिस लाइन इट टॉक्ड अबाउट कि लक्षद्वीप में जो आप कह रहे हो डेवलपमेंट है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे डेवलपमेंट है बट बहुत ही पीपल सेंट्रिक है. देन इट सेज कि नाउ दिस मॉडल ऑफ लाइक बट आप जो इसने कहा कि ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है लक्षद्वीप में. द आर्टिकल टॉक्स अबाउट हाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है बिकॉज अब वहाँ पे इनकम डिस्पैरिटीज़ ग्रो करने लगी हैं और इनडिस्क्रिमिनेट ट्रॉलर्स क्या होते हैं जो फिशिंग के लिए बड़े बड़े लार्ज फिशिंग वेसल्स होते हैं जो कि इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय करते हैं अगर उनको बहुत ही डीप वहाँ पे डीप उसमें लेके जाए. तो इसने बोला कि इनडिस्क्रिमिनेट ट्रॉलिंग से वहाँ के कोरल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं जिनको इवन मालदीव में भी बैन कर दिया गया है. और वहाँ उसने आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि बहुत ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है बिकॉज यूथ ने मॉडर्न एजुकेशन एक्वायर करके वो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को छोड़ रहा है. एंड देन टॉक अबाउट कि वहाँ पे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मॉडल ऑफ डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है. जैसे आप सैनिटेशन पे काम करो, वेस्ट डिस्पोजल पे काम करो, फिशरीज इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए. बट आर्टिकल सेज कि नन ऑफ दिस कैन बी डन विथ दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो अभी जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आ रहा है. दिस इज नॉट सुटेबल. इवन इनफैक्ट मालदीव मॉडल भी वहाँ पे सुटेबल नहीं है. इट टॉक्ड अबाउट जैसे आर्टिकल में जो वाटर बंगलोज की बात हो रही है ना, दिस वुड कोलैप्स इन लक्षद्वीप. जब लक्षद्वीप में जब टर्बुलेंट मानसून आता है तो ये सब कोलैप्स हो जाएंगे. तो आर्टिकल सेज कि फर्स्ट थिंक इट थ्रू एंड देन कम अप विद समथिंग. तो बोलता है कि देयर फॉल्ट इन न्यू रूल्स एंड इट टॉक्स अबाउट कि कितने सारे फॉल्ट है इस न्यू रूल्स में. एंड द फॉल्ट इंक्लूड्स, आप कह रहे हो काउ स्लॉटर बैन होना चाहिए, बट देन इट सेज कि वहाँ पे तो ज़्यादा काउ है ही नहीं, वो तो गवर्नमेंट ओन डेयरी फार्म्स में ही है. देन इट सेज कि इन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ नेक्स्ट इट सेज आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ आप लेकर आ रहे हो जबकि लक्षद्वीप में क्राइम रेट बहुत ही कम है. लक्षद्वीप है वेरी लो क्राइम रेट.
And then it again contests key steps to determine the tribal land ownership with judicial remedy is like steps to undermine the land ownership with judicial remedy. आपने एक तो आपने बहुत सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लेकर आए हैं और वहाँ पे जुडिशियल रेमेडी भी नहीं है उनके पास. एंड देन इट टॉक्ड अबाउट आप जो वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की बात कर रहे हो, जबकि मैक्सिमम रोड लेंथ वहाँ पे सिर्फ 11 किलोमीटर ही हो सकती है. एंड विद करंट सेट ऑफ लॉ यहाँ पे माइनिंग और एक्सप्लॉयटेशन होगी ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज एंड इट विल बिकम हब फॉर द सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स. सो दिस इज सेइंग इट्स अ फॉल्ट इन द करंट regime. So the panchayat rule, it says कि in सारे fault से kind of law is not suitable for the Lakshadweep ecology and even for the population. Again, article talked about कि the new regulation मैंने पहले ही बोला था कि it says कि जहाँ पे भी more than two children any person will not be able to contest election. But then it says कि this is very absurd in terms of कि आप you are saying कि bringing this law to control the population, but article says कि according to National Family Health Survey वहाँ पे total fertility rate 1.4% है. That means any mother gives less than almost a family has less than 2 children, which is like even national health national average is 2.2. तो ये national average से भी कम है. So like how are you trying to control population is there जब वहाँ पे population already इतनी कम है. So and it talked about due to like current misadministration वहाँ पे quarantine restrictions आपकी हटा दी गई हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस वहाँ पे भी एक पैंडमिक बन चुका, एक बेसिकली इशू बन चुका है. And then talked about कि this is an example of maladministration, like not a good administration, and current government should think about it. So this is how the article actually done with this. Next, let's move with next section, which was COVID related. Now next article जो कि थोड़ा इस वाले on the next page यहाँ पर है, this was regarding journalism, so I didn't deal about this. The article below was also related to politics, so I didn't talk about this. But this was about vaccination, कि like how we can like globally coordinated effort can help us deal with the current scenario जो कि हम सब अभी deal कर रहे हैं. Article says कि India is witnessing first set up a background. It says कि इंडिया बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सर्च ऑफ कोविड-19 से झेल रहा है. We dealt with this. Even WHO says कि इंडियन वेरिएंट ऑफ द कोरोना इज अ ग्लोबल कंसर्न, जो कि मोर देन 40 कंट्रीज में स्प्रेड कर चुका है. इससे एक चीज़ पता चल रही है कि नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ. अगर किसी भी कंट्री में ये वेरिएंट रह जाता है किसी भी फॉर्म में, देन ये अगेन म्यूटेंट बनाएगा और हर जगह फैल जाएगा. बिकॉज ऑफ इट सेज कि सभी को साथ में आके काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ दिस पैंडेमिक. सो देन इट टॉक्ड अबाउट कि अब करंट सिनेरियो क्या है. इट सेज इन करंट सिनेरियो आपकी लार्ज स्केल वैक्सीन शॉर्टेज देखी जा रही है, जबकि वैक्सीन हेजिटेंसी जा चुकी है, लेकिन बहुत ही वैक्सीन की शॉर्टेज देखी जा रही है. इसकी वजह से पीपल हैव इवन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट की वैक्सीन मैत्री पॉलिसी, जब गवर्नमेंट वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रही थी अपनी कंट्री को निगलेक्ट करके. नाउ इसकी वजह से गवर्नमेंट हैज एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीन. ना आर्टिकल सेज कि चाहे कुछ टाइम के लिए सही होगा, बट लॉन्ग टर्म इट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, बिकॉज आर्टिकल सेज ना कि अनलेस एंटिल एवरीबडी इज सेफ नोबडी इज सेफ. अगर हमने सभी कंट्रीज को इससे डील करने में हेल्प नहीं की गई तो ये वापस आ जाएगा. Now that's why pandemic need to be like dealt in a globally collaborated effort. Now talks about कि लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या होंगे. इसमें चैलेंजेस ये है कि इंडिया को खुद को मोर देन 1.5 बिलियन डोजेस बनाने की ज़रूरत है, मच मोर देन दिस. लेकिन हमारी करंट कैपेसिटी भी सिर्फ 17 मिलियन पर मंथ बना पाते हैं. अगर हम अपना बेस्ट काम भी करेंगे तो भी 158 मिलियन पर बेस्ट बना पाएंगे. अगर स्पुतनिक भी आ जाते हैं ना, तो कोविशील्ड प्लस कोवैक्सीन और प्लस स्पुतनिक को मिला के भी हम कंबाइनली इतनी आसानी से इसको डील नहीं कर सकते. दैट मीन्स इंडिया अलोन इसको डील नहीं कर पाएगी. और इनफैक्ट व्हाट इट इज सेइंग कि ग्लोबल एफर्ट चाहिएगा ही, मतलब दैट इज समथिंग आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते. तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक सेक्टर साथ में आपकी मदद करे. बट व्हाट इज हैपनिंग इज गवर्नमेंट इज इंस्टेड प्राइवेटाइजिंग. सो दिस इज अनदर चैलेंज. So this is like challenges talked in article. It says the more challenges is कि we don't have enough raw material.
There is complexity in terms of transfer technology because of intellectual property rights. So these are like intellectual property rights में क्या है, if somebody know how to like develop a vaccine but it wants to like generate money out of it, so other companies who are capable will not be like manufacture vaccine because IPR will come in between. So IPR, lack of raw material, government not actually focusing on public sector, not having enough capacity are the challenges. So but article come up with suggestion. Article suggests few things, and the suggestion includes, the article suggestion includes in this first is saying that India is a pharmacy of the world and India needs to rise and cater to demand of the vaccine domestically और globally. उसको सिर्फ अपनी ही नहीं, उसे बाकी लोगों की भी needs को भी fulfill करना है. And then article talks about कि where the multiple producer will lead to the like we have to bring multiple producer, जिससे कंपटीशन आएगी और प्राइस कम होगा, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ प्राइस राइज देखी जा रही है मार्केट में, वहाँ पे गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं करेगी, कंपटीशन नहीं लाएगी. अगेन इट सेज कि इंडिया नीड टू फ्रेम अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी टू इनहेंस सप्लाई. सिर्फ मतलब अभी नहीं, उसको बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लानी पड़ेगी. नाउ व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इंडिया इज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, आप इसको इस डेटा से समझ सकते हैं कि नेशनल लाइक दिस इज अ वेरी गुड डेटा, आप कहीं भी लिख सकते हैं कि वाई इंडिया इज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया इज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के डेटा ने बोला था कि इंडिया हैज़ अ इंस्टॉल कैपेसिटी जिसमें 8,000 मिलियन डोसेज एनुअली बना सकती है. बट लाइक दिस इज नॉट जस्ट, बट वो सिर्फ कोविड के लिए नहीं बनाती, लाइक देर आर मेनी अदर लाइक डिजीज लाइक डिप्थेरिया है, लाइक देन देर इज पोलियो, और इन सब की वैक्सीन बना रही होती है ना. दैट्स वाई लाइक नाउ यू आर डीलिंग विद कोविड, दैट डज नॉट मीन उन सब की वैक्सीन बनाने की जरूरत नहीं है, इंडिया को उनकी भी कैपेसिटी है. आर्टिकल ओनली सेज कि अभी फॉर सम टाइम यू मे हैव टू रीपर्पस मेनी ऑफ दिस फैसिलिटीज टू द कोविड-19, आप रीपर्पस कर सकते हो. And to deal with IPR issue, India and South Africa had talked about it like for temporary waiver of the like TRIPS proposal of the WTO. So this is something इस पे और काम करने की जरूरत है. And then article conclude will saying कि अब now currently new mRNA vaccines are coming. mRNA वैक्सीन की खास बात क्या है, ये बहुत इफेक्टिव है, इनकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है इवन टू द म्यूटेंट वेरिएशन. Also, they can be easily scaled up. इनको scaled up आसानी से किया जा सकता है. So, government should actually focus on these kind of vaccine, that is mRNA vaccine. And with this, article concludes. So, with this, we are done with this today's simplifying the editorial session. Thank you for staying with me. Then stay at home, stay healthy, and stay connected to AQ Bias.